Hello students, I am Dr. Rashmi Parihar from Government E. Raghavendra Rao Postgraduate Science College, Bilaspur. I will teach you today bacterial conjugation. You know well that bacteria are prokaryotic organisms, they are haploid and they lack sexual reproduction. So genetic recombination, how it occurs? It occurs as the exchange of genetic material from homologous segment of chromosome to the double-stranded circular chromosome. So, one or more nucleic acid molecules rearrange or recombine to produce a new nucleotide sequence, that is recombination. The plants, animals which have a true sexual cycle, the genes are transferred from parents to the offspring. That is from parents to the offspring, and such a method is called as vertical gene transfer. But in case of bacteria, they can pass their genes to their offsprings also, and also laterally to other microorganisms of the same generation. That is, the transfer of genetic material from this bacteria 1 to this bacteria 2, this process is lateral transfer, and this is called as horizontal gene transfer. Genes are transferred from one independent mature organism to the another. चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, दोनों सिस्टम में जेनेटिक एक्सचेंज जो है इट इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड देयर रियूनियन टू प्रोड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेंट जीन्स. Now what are the ways of gene transfer in bacteria? There are three different ways: transformation, conjugation and transduction. See, in this figure, from this figure, it is clear that in this first process, that is conjugation, the genes are transferred from one organism to another through the formation of a conjugation tube or through the direct contact. But in this second case, that is transduction, the genes from one bacterium are transferred to another bacteria through the agency of bacteriophages. In this third category, that is transformation, the naked DNA from the dead bacterium, it is directly uptaken by the recipient bacterium. So let us focus on conjugation. So the genetic material is transferred from bacteria A to bacteria B through direct contact. So what is conjugation? It is transfer of genetic material from bacteria A to bacteria B by mating or contact is called as conjugation. This process is called as mating. Now let us see what is the history of conjugation. This process was discovered in 1946 by Lederberg and Totem in E. coli. The evidence for necessity of physical contact was proved by Bernard Davis in 1950. Jacob and Wollman, they established that bacteria were of two mating types. HFR strains were discovered by William Hayes in E. coli. We will see in our next slides what are HFR strains. ये जो प्रोसेस है कॉन्जुगेशन की, ये साल्मोनेला, शिगेला, सूडोमोनाज इत्यादि बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया गया, और साथ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस में भी ये पाया गया, ऑब्जर्व किया गया. स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो आप सबको पता होगा, जो दांतों में कैविटी बनाते हैं, उन बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस पाई गई. तो अब ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस को देखने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए लीडरबर्ग और टॉटम द्वारा एक प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने ई कोलाई के दो स्ट्रेन्स लिए. एक स्ट्रेन जो था, इट वाज एबल टू सिंथेसाइज मिथियोनिन एंड थ्रियोनिन. You might be knowing what is methionine and threonine. They are the amino acids. तो एक जो इकोलाई 1 था वो मिथियोनिन और थ्रियोनिन को सिंथेसाइज कर सकता था, वहीं पर वो ल्यूसिन और थायमिन इनको नहीं कर सकता था. ल्यूसिन जो है ये अमीनो एसिड है, थायमिन जो है एक विटामिन है. सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रेन लिया गया वो मिथियोनिन और थ्रियोनिन को नहीं बना सकता था, परंतु वो ल्यूसिन एंड थायमिन को बना सकता था.
जब हमने इन बैक्टीरिया को अलग से ग्रो किया मीडिया पे, तो यहाँ कोई ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए इसको ये चारों चीज़ों की आवश्यकता थी। साथ ही जब हमने इकोलाई के स्ट्रेन 2 को मिनिमल अगार पे ग्रो किया, तो इसमें भी ग्रोथ हमें नहीं मिली। जब हमने इन दोनों स्ट्रेन्स को मिक्स किया और ग्रो किया, तब पाया गया कि यहाँ पे ग्रोथ अच्छे से आई। तो सबसे पहले ये सोचा गया कि ये जो जीन ट्रांसफ़र हुई या जो ये ऑब्जर्व हुआ कि ग्रोथ आई इस मीडिया में, तो ये सोचा गया कि ये शायद ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के कारण हुआ होगा या उन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। उसके उपरांत डेविस द्वारा एक यूट्यूब एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया गया, जिसमें उन्होंने एक कांच की ट्यूब ली, जो कि ये बीच में से एक फ्रिटेड ग्लास फिल्टर इसमें लगा दिया गया, जिसमें से मीडिया जो था वो अंदर बाहर जा सकता था, दोनों तरफ मिक्स हो सकता था, परंतु बैक्टीरिया के लिए ये परमिएबल नहीं था। उन्होंने इसमें मीडिया डाला और इस स्ट्रेन में, एक स्ट्रेन में उन्होंने जो डाला प्रोटोट्रॉफ, ये था मिथियोनिन और थ्रियोनिन नहीं बना सकता था, पर ये ल्यूसीन और थाइमिन को बना सकता था। वहीं दूसरे आर्म में उन्होंने लिया वह स्ट्रेन इकोलाई का दूसरा स्ट्रेन जो कि मिथियोनिन और थ्रियोनिन को बना सकता था, पर ल्यूसीन और थाइमिन को नहीं सिंथेसाइज कर सकता था। और ये प्रेशर और सक्शन के द्वारा ये इन्होंने मिक्स किया ताकि मीडिया यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो सके, परंतु ऑर्गेनिजम्स ये एक दूसरे से दूर थे, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। जब उन्होंने इसमें से मीडिया में ग्रो किए, तो यहाँ कोई ग्रोथ नहीं आई, और यहाँ पे भी जब उन्होंने ग्रो किया अलग से इनको, तो यहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं पाई गई। सो डेविस का जो प्रयोग था उसका ये निष्कर्ष निकला कि ये इस कॉन्जुगेशन के लिए या रिकॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट या फिजिकल कांटेक्ट नेसेसरी था। कॉन्जुगेशन प्रक्रिया जानने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, तो हम एक के बाद एक इनको देखेंगे। जैसे कि एफ फैक्टर। व्हाट आर एफ फैक्टर्स? एफ मतलब फर्टिलिटी। द फर्टिलिटी फैक्टर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द डोनर सेल। तो एफ फैक्टर जो होते हैं ये एक प्रकार के प्लाज्मिड्स होते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम। ये देखिए डायग्राम में, ये जो है ये क्रोमोसोम है, और ये जो अलग से आपको दिख रहा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, दैट इज द फर्टिलिटी फैक्टर और एफ प्लाज्मिड। एंड they form conjugation bridge between the donor and the recipient cell. अब ये F प्लस सेल क्या है? मतलब ये जो F प्लाज्मिड है, it is responsible for forming a conjugation bridge between these two bacteria. अब F प्लस सेल्स क्या होती हैं? जिन बैक्टीरिया में F प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं F प्लस सेल्स, और जिन बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं F माइनस सेल। जिन बैक्टीरिया में ये एफ फैक्टर प्रेजेंट है उन्हें हम मेल कहते हैं, या उनको हम डोनर बोल के भी डिनोट कर सकते हैं। वहीं जिनमें ये एफ फैक्टर एब्सेंट है उन्हें हम फीमेल भी कहते हैं, या उन्हें हम रेसिपिएंट भी कह सकते हैं। Now what is this HFR strain? These high frequency of recombination strains, they were discovered by William Hayes in E. coli, and such strains developed when a male mutated to super male which showed high frequency of recombination with a female. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो F फैक्टर है, ये जो F फैक्टर है, it is integrated into the बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इसमें इंटीग्रेट हो गया। सो द HFR cells, they are the derivatives of the F plus cells where F plasmid has integrated into the host chromosomal DNA. Attachment of F plasmid to the chromosome is a rare event and occurs in a low frequency. पर इसके जो चांसेस है कि ये जो F फैक्टर है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो, ये एक रेयर इवेंट होता है, और ये काफ़ी इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। Chromosomal gene transfer from donor to recipient occurs only when F plasmid is integrated into the chromosome forming the HFR cell. जब मेटिंग होता है F प्लस में और F माइनस में, तब सिर्फ F फैक्टर ही ट्रांसफर होता है डोनर से रेसिपिएंट में,
पर यदि ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जीन्स को ट्रांसफर ये कब होंगी, ये तभी हो पाएंगी जबकि ये जो है एफ प्लाज्मिड जो है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होगा, तभी ये क्रोमोसोमल जीन ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी में है एफ प्राइम सेल्स। एफ प्राइम सेल्स जो है दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ HFR सेल where F plasmid has disintegrated from host chromosome and picks up some host genes next to the F plasmid integrated sites। मतलब आप देखिए ये जो DNA, ये जो F फैक्टर है ये इसमें बैक्टीरियल DNA में क्रोमोसोम में ये इंटीग्रेट हो गया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटीग्रेशन के बाद में ये डिसइंटीग्रेट भी हो सकता है, परंतु जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तब ये अपने साथ में थोड़ा सा बैक्टीरिया का ये हिस्सा भी लेके निकलता है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा DNA आ गया और ऐसे स्ट्रेन्स को हम कहते हैं एफ प्राइम स्ट्रेन्स। नाउ लेट अस सी how the conjugation occurs or what is the process of conjugation। तो F plasmid जीन जो है ये F plasmid जो है it confers the ability to produce long hair like appendage जिसे हम कहते हैं सेक्स पिलाई या F पिलाई। तो ये जो F plasmid है ये गवर्न करता है कि ये डोनर और रेसिपिएंट के बीच में ये एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बने। एंड द एफ प्लाज्मिड ये जो होता है ये कुछ एंजाइम्स को कोड करता है जो कि मेटिंग ब्रिज बनाने में सहायता करते हैं। इसमें ये जो सेक्स पिलस है ये रिट्रैक्ट होती है जिसके कारण एफ सेल जो है ये एफ प्लस के कांटेक्ट में आती है। नाउ द रेप्लिकेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड बिगिंस। रेप्लिकेशन जो है आप सबको पता है ये रोलिंग सर्कल मॉडल से होता है। तो इससे क्या होगा कि द स्ट्रैंड विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज रीजनरेटेड। ये इससे क्या होगा कि ये जो इस यहाँ पे कट आएगा और इसमें से इसका एक हिस्सा यहाँ पे इस बैक्टीरिया में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आ गया बैक्टीरिया तो यहाँ पे भी एक रोलिंग सर्कल द्वारा यहाँ पे भी एक डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा और यहाँ पे भी जो है न्यू सिंथेसिस हो जाएगा। सो द स्ट्रैंड विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज रीजनरेटेड बाय न्यू DNA सिंथेसिस। ये जो DNA स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री टू द ट्रांसफर्ड DNA is synthesized in the F cell. After completion of transfer, the two regenerated strands are sealed by ligase। जैसे पूरी कॉपी यहाँ भी बन गई और यहाँ भी नई सिंथेसिस हो गई, फिर वो दोनों जो है उनके जो निक्ड एंड्स है वो लाइगेज द्वारा एंजाइम द्वारा जुड़ जाते हैं और उसके बाद ये दोनों सेल्स का ब्रेकअप हो जाएगा और ये दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे। नाउ बोथ ऑफ देम हैव अ कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड एंड बोथ बिकम एफ प्लस। जैसे इसमें ये प्लाज्मिड था अब यहाँ पे भी ये प्लाज्मिड आ जाएगा। तो मतलब जो एफ प्लस सेल एफ माइनस सेल जो थी वो भी काय में कन्वर्ट हो गई, अब एफ प्लस सेल में कन्वर्ट हो गई। अब हम देखेंगे क्रॉस बिटवीन द एफ प्लस और एफ माइनस। तो हम देखते हैं एफ प्लस मतलब जिसमें एफ फैक्टर है एफ प्लाज्मिड है और एफ माइनस मतलब जिसमें एफ फैक्टर नहीं है। तो जब ई कोलाई एफ प्लस सेल कॉन्जुगेशन करती है एफ माइनस सेल के साथ तो ओनली द प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड। सिर्फ प्लाज्मिड का ट्रांसफर होगा परंतु किसी भी क्रोमोसोमल जीन्स का ट्रांसफर नहीं होगा। द ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर्स इन्वॉल्व्स नो एक्टिविटी ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है। द रेसिपिएंट सेल डज नॉट acquire न्यू जीन्स अदर देन दोज ऑफ द एफ फैक्टर। यहाँ पे हम देखते हैं इस प्रक्रिया को, ये जो है ये F प्लस सेल है जिसमें कि ये F फैक्टर है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, दिस इज द F माइनस सेल। यहाँ से ये एक स्ट्रैंड इसका डिस्प्लेस हुआ और ये डोनर सेल में रेसिपिएंट सेल में गया। अब यहाँ पे रोलिंग सर्कल मॉडल के साथ हुआ। अब यहाँ पे जो ये जो स्ट्रैंड गया इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लिया और यहाँ पे भी नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो गया और इस तरीके से जो F माइनस सेल थी ये भी काय में कन्वर्ट हो चुकी है F प्लस सेल। यहाँ पे हम ध्यान देंगे यहाँ पे सिर्फ F प्लाज्मिड ही ट्रांसफर हुआ है, न कि क्रोमोसोम का कोई भी हिस्सा यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ।
पर अगर ये क्रोमोसोम का हिस्सा ट्रांसफर होना है तो क्या है कि यहाँ जरूरी है कि ये जो एफ प्लाज्मिड है ये जो है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होगा और एचएफआर मेल का फॉर्मेशन होगा, तभी ये क्रोमोसोमल जीन्स जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो सकती है। अब हम देखेंगे एचएफआर और एफ माइनस सेल के बीच का क्रॉस। एचएफआर मतलब ये एफ प्लाज्मिड जो है जब ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा तब हम इसे कहते हैं एचएफआर स्ट्रेन। सेक्स पिलस जो है वो अटैच करती है और एक ब्रिज बनाती है। एचएफआर क्रोमोसोम ओपन हो जाता है और रेप्लिकेट्स बाय रोलिंग सर्कल मॉडल। ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये बैक्टीरिया में यहाँ पे चला गया। द पोर्शन एंटर द रेसिपिएंट और ये अलाइंस अलोंग साइड द क्रोमोसोम। ये बैक्टीरिया के जो रेसिपिएंट है उसमें ये क्रोमोसोम पे अलाइन हो जाएगा और यहाँ पर जो इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम की जो स्ट्रैंड है वो सेगमेंट है वो डिस्प्लेस हो जाएगी थोड़ी सी और यहाँ पे मतलब साइनेप्सिस होगा। तो जो पहली जीन होती है जो कि रेसिपिएंट में जाएगी वो एफ फैक्टर जीन्स होती हैं। मतलब ये दिख रहा है ना, ये एफ फैक्टर जो है ये जीन्स होती हैं, परंतु ध्यान रहे ये जो है दे आर नॉट दोज विच डिसाइड द डोनर स्टेट। मतलब जो एफ प्लाज्मिड में भी जो जीन्स होती हैं वो डिसाइड करती कि ये प्लस है कि ये माइनस है, तो उस हिस्से से ये अंदर नहीं जाएगी। बट द लास्ट जीन्स टू एंटर डिसाइड द डोनर स्टेट। मान लो ये हमारा एफ प्लाज्मिड है तो ये हिस्सा पहले जाएगा और ये हिस्सा बाद में जाएगा और ये जो आखिरी हिस्से में जो है इसमें ये जीन्स रहती हैं जो कि डिसाइड करती है एफ प्लस रहेगी सेल या एफ माइनस स्टेटस को डिसाइड करती है। एंड डीज रेयरली एंटर बट द कॉन्जुगेशन इज इंटरप्टेड। मतलब पूरा ये इसके यहाँ ट्रांसफर होने उसके पहले ही क्या होता है, कॉन्जुगेशन ये जो है ब्रिज ये टूट जाता है और सेल सेपरेट हो जाती, इसलिए पूरा हिस्सा वहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए ये रेयर होता है। इसलिए यूजुअली द एफ माइनस जो है वो एफ माइनस ही रहेगा, परंतु ये जो है सब कुछ न्यू जीन्स को डोनर द्वारा दी गई जीन्स को अक्वायर कर लेगा। मतलब यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, परंतु जो एफ माइनस है वो एफ माइनस ही रहेगी, वो एफ प्लस में कन्वर्ट नहीं होगी। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एफ प्लस एंड एफ माइनस सेल और एचएफआर और एफ माइनस के क्रॉस में किस तरीके से होता है, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं पहले की स्लाइड्स में, उसी को वी विल रिवाइज। द प्लाज्मिड इज फ्री इन द सेल। जिस सेल में प्लाज्मिड है उसको हम डोनर कहेंगे और पूरा एफ प्लाज्मिड इज ट्रांसफर फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। इसमें सिर्फ इस प्रक्रिया में सिर्फ हमको 2 मिनट लगेगा और जो एफ माइनस सेल है वो एफ प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोमल जीन्स डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे क्रोमोसोमल जीन का ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ एफ प्लाज्मिड ही ट्रांसफर होगा। वही एचएफआर और एफ माइनस के क्रॉस में क्या होगा, ये जो एफ प्लाज्मिड है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हुआ, रेप्लिकेशन रोलिंग सर्कल मॉडल के द्वारा हुआ और जो ट्रांसफर हुआ एफ माइनस इंटीग्रेटेड क्रोमोसोम, इस प्रक्रिया को लगता है 100 मिनट, परंतु ये पूरा ट्रांसफर नहीं हो पाता क्योंकि 100 मिनट के पहले ही दोनों सेल सेपरेट हो जाती हैं और जो क्रोमोसोमल जीन्स है दे आर ट्रांसफर्ड अलोंग विद सम few F plasmid genes. The transferred chromosomal genes may be incorporated into the recipient by homologous crossing over resulting in genetic recombination. मतलब यहाँ पर जो है पूरा F plasmid ट्रांसफर नहीं होता है, परंतु बैक्टीरियल डोनर जो है, डोनर की कुछ क्रोमोसोमल जो सेल्स हैं वो रेसिपिएंट में चली जाती हैं और वहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे किस तरीके से हुआ। ये रेसिपिएंट सेल है, ये डोनर सेल है। डोनर सेल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एफ प्लाज्मिड है, यहाँ पे ये नहीं है।
यहाँ से ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई, ये पिलाई है, पिलाई ने इसको यहाँ पे पिलाई यहाँ पे दोनों में कांटेक्ट बना और एक ये जो एफ प्लाज्मिड है वो एंजाइम्स बनाता है जो कि जो ब्रिज को फॉर्म करने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रिज बन चुका है और यहाँ पे ये निक हो गया, यहाँ पे कट हो गया और यहाँ से एक हिस्सा जो है ये रेसिपिएंट सेल में चला गया। यहाँ पर अब ये अपना नया संश्लेषण कर लेगा और यहाँ पे भी नया संश्लेषण हो जाएगा और इस तरीके से पूरा जो एफ प्लाज्मिड है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो जो मेल था वो भी जो फीमेल था, जो रेसिपिएंट था, वो भी अब एक डोनर बन चुका है नया और दोनों बैक्टीरियल सेल्स सेपरेट हो गए और इस तरीके से कॉन्जुगेशन प्रक्रिया पूरी हुई। होप स्टूडेंट्स you have